Good evening, everybody. This is our fifth lecture of current electricity. It is a continuation video, and we will discuss the Ohm's law. Till now, we have discussed current inside a conductor when we apply some battery across it. So again, we will draw the conductor. मान लीजिए यह एक कंडक्टर है जिसके क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू ए है और यह यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है थ्रू आउट, मतलब एक ही एरिया है. लेंथ ऑफ कंडक्टर इज एल. बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V has been applied across it, so it will create a potential difference. This will be at potential V and this will be at potential 0. We are having some electric field inside the conductor. The value of this electric field will be V by L. Okay. Now look here. When we apply a battery, the electron inside the conductor are pushed opposite to the direction of electric field and they have some drift velocity. So this is the drift velocity of electron. The electron will move in this direction through this cross section. So the direction of current will be opposite to the motion of negative charge. We have learnt it कि यह इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इस क्रॉस सेक्शन को इधर से पार करते हुए ऐसा लेफ्ट साइड आ रहा है, तो करंट जो है नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में होगा. सवाल है कितना होगा. We know that current inside conductor is I equal to NEAVD. This is our first equation, and drift speed is equal to E by m into tau. Now substituting the value of Vd in equation 2, substituting the value of Vd इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में Vd की वैल्यू रख दीजिए. वी विल गेट I इज इक्वल टू NEA, Vd इज इक्वल टू E by m इंटू टाउ. सो द वैल्यू ऑफ करेंट विल बी NE स्क्वायर बाई m इंटू एरिया. Electric field can be written as V by L, or you have let it be electric field only. Bring the area vector on this side. We have I by A. This is NE square tau upon m into E. जो लेफ्ट साइड में टर्म I by A, that we know that is current density, and this term is current conductivity of conductor. So from here you can write like this. The value of current density is J equal to sigma E, where J current density है, सिग्मा कंडक्टिविटी है और E इलेक्ट्रिक फील्ड है. इस एक्सप्रेशन से बिल्कुल क्लियर होता है जिस पॉइंट पर जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर वैसा करंट डेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है. तो अपने पास एक रिलेशनशिप आ जाता है J इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर. एंड दिस इज आवर पॉपुलर ओम्स लॉ, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. But we have remembered Ohm's law in another form. What is the statement that we can write? इसको और भी दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं.
We can write J as I by A. Sigma electric field can be written as V by L. So V can be written as I L by sigma A. Sigma is conductivity. And remember here, reciprocal of conductivity is resistivity. Reciprocal of conductivity is resistivity. And you know that I is equal to रो एल बाई ए, और इसी टर्म को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, V इक्वल टू आई आर. So this is our popular form which we have learnt in class 10, where R is रो एल बाई ए. This is resistance. पहले आप ये स्टेटमेंट जानते थे, अभी थोड़ा सा इंप्रूव हो गया, ये करंट डेंसिटी के रूप में ओम्स लॉ. ये आपके हिसाब से पुराना ओम्स लॉ है. अब ये क्या कहता है, इसे थोड़ा समझते हैं हम लोग. आई विल रिमूव फ्रॉम हियर. स्टेटमेंट जो है वो लिख लिया जाए. इट स्टार्ट्स विथ अ कंडीशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर. दिस इज द कंडीशन. द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर at constant temperature, current flowing through conductor is directly proportional to potential difference applied across it. तो अब अगर इस कंडक्टर के अक्रॉस जितना ज़्यादा अपन पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे उतना ज़्यादा करंट जाएगा. ये सिंपल सा स्टेटमेंट जो है, दिस इज आवर ओम्स लॉ. एंड वी हैव प्रूव इट मैथमेटिकली. यू कैन से दैट V is directly proportional to I. V is directly proportional to I that we have established here. And this is the statement, and we see yes, it is correct. One more thing is important here. That is direction of current. इन कंडक्टर, दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, इन कंडक्टर करंट फ्लोज फ्रॉम रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल to a region of low potential. मतलब ये है कि अगर ये सिंबल है ए रेजिस्टेंस का, इधर आप मान ले 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और इधर 0 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो करंट विल पास थ्रू दिस इन दिस डायरेक्शन, एंड यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ करंट टू बी 10 - 0 by R.
Again you can see another example. Suppose this is a resistance. This time this is a higher potential, positive VH. This is lower potential, negative VL, low. So this is high potential, this is low potential, this is resistance R. You can say that this is the direction of current. This time current is in this direction. And value of current will be higher potential minus lower potential divided by R. This is the exact meaning what Ohm's law says. And in this way we will apply when we know the potential of a point in a circuit. इसी तरह से हम लोग इसे सर्किट में अप्लाई करेंगे. It is a very useful formula. But one more thing is important here. We will see its experimental verification. What Ohm actually did. We are not interested in time when who discovered first and who discovered later. What comes first, what comes last. We have to look for application. There is an important factor. What is stated? He have draw experimental verification. You can see. He took a resistance. उन्होंने एक रेजिस्टेंस लिया, अप्लाइड अ वोल्ट मीटर अक्रॉस इट. आप जानते हैं वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जो वोल्टेज को मेजर करेगा. अप्लाइड अ बैटरी हियर एंड ही कनेक्टेड एन मीटर इन दिस सर्किट. देयर द बैटरी वाज टेकन विथ वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस. ही नोटिस्ड दैट व्हेन दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड द रीडिंग ऑफ अ मीटर आल्सो इंक्रीज्ड एंड ही प्लॉटेड अ ग्राफ सिंपली. This was the input, so it is on x-axis. Reading of a meter was output, so it was on y-axis. And he found the graph to be a straight line. Okay. तो यहाँ पर इसी बेसिस पर कंडक्टर डिवाइड किया गया on the basis of this graph. This graph is known as VI characteristic. तो कोई भी ऑब्जेक्ट लिया जाता, एक्सपेरिमेंट किया जाता और देखा जाता कि उसका ग्राफ कैसा है. इफ ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, यदि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, देन ओम्स लॉज आर एप्लीकेबल. अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो ओम्स लॉ एप्लीकेबल होंगे. एंड कंडक्टर आर कॉल्ड एज ओमिक कंडक्टर. ओम्स लॉ सिर्फ ओमिक कंडक्टर के लिए ही लगा. अब किसी के लिए स्ट्रेट लाइन नहीं भी होता है. इफ सेकंड पॉइंट ग्राफ इज कर्व, देन कंडक्टर इज नॉन ओमिक. कंडक्टर इज नॉन ओमिक. यदि ग्राफ जो है वो कर्व हो जाएगा तो कंडक्टर को आप नॉन ओमिक मान लेंगे. समझ गए बच्चों? ए सिंपल सा कहानी. तो सबके लिए स्ट्रेट लाइन नहीं होता, किसी के लिए नहीं भी होता है. तो जिनके लिए नहीं होता उनको हम मान करके चलते हैं कि ये जो है नॉन ओमिक कंडक्टर है. ये बात यहाँ पे खत्म होती है. सो इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ओमिक कंडक्टर. तो काफी कंडीशनल लॉ है. दूसरी एक चीज, अगर हम इस ग्राफ को ऐसा मिला देते हैं, मान लीजिए, तो हियर यू आर गेटिंग समथिंग. सो दिस स्लोप, व्हाट डज द स्लोप ऑफ ग्राफ? तो डिस्कस द थर्ड पॉइंट. व्हाट इज ऑब्टेन्ड बाय स्लोप ऑफ ग्राफ? You can say slope of graph m is equal to tan theta and this will be equal to I by V. और आपने अभी पढ़ा V is equal to how much? IR. So tan theta is equal to how much? 1 by R.
this is written as conductance. It is reciprocal of resistance. So the slope of Vi characteristic gives you conductance. Higher the slope, higher will be conductivity, or lower the slope, lower will be conductivity. In inverse manner, you can say that higher the slope, lower will be resistance, and lower the slope, higher will be resistance. This is the important point which we have to know. Now I shall remove, and this is the end of Ohm's law, and we will look at one question. It is a simple law. हाँ, ये याद रखना है, सब जगह एप्लीकेबल नहीं है. एक कंडीशन, दो कंडीशन है इसमें. पहला टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, उसे आप लिमिटेशन भी बोल सकते हैं, जो कि होता नहीं है. दूसरा आप ये मान सकते हैं कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ ओमिक कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल है. वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन रिगार्डिंग ओम्स लॉ. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ योर CRQ. Suppose the potential difference across a straight wire. ये एक स्ट्रेट वायर है. पहले क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग. दिस इज ए स्ट्रेट वायर और इसके क्रॉस सेक्शन एरियाज दिए गए हैं. द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 10 to the power -3 centimeter square. And the length is 50 centimeter. बैटरी जो लगाई गई है वो 2 वोल्ट की लगाई गई है. When a current of 0.25 ampere is flowing in the wire, calculate electric field strength. और इससे जाने वाला जो करंट है that is of 0.25 ampere. Then we have to find electric field. आपने बैटरी लगाया तो निश्चित है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी. ये सब इंफॉर्मेशन गिवन है. निकालना है ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है. फर्स्ट पार्ट में 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के. तो जैसे ही हम लोग जानते हैं बैटरी लगा देंगे तो इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा. उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है V/L. तो ये सिंपल फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है. इट इज 22 वोल्ट एंड इट इज 0.5 मीटर. यू कैन सिंप्लीफाई इट. इट विल बी 4 वोल्ट पर मीटर. दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. कम टू B पार्ट, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. करंट डेंसिटी, अगेन इजी क्वेश्चन. द वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी इज I/A. I is already given, area is given. I is 0.25 and area is 10 to the power -3 centimeter square. So you can say that it is a 0.25 into 10 to the power 3 ampere per centimeter square. This is the answer of second part. आप चाहें तो इसे मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है तो मुझे सेंटीमीटर ही स्क्वायर अच्छा लग रहा. कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी. वी हैव सीन दैट ओम्स लॉ. अभी ओम्स लॉ का नया फॉर्म लिखेंगे आप लोग. J इज इक्वल टू सिग्मा E. सो सिग्मा विल बी इक्वल टू विच इज कंडक्टिविटी J/E. एंड वी हैव सीन दैट वैल्यू ऑफ J इज 0.25. अब बदलना पड़ेगा 10 to the power 3 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में. तो हेयर इज योर सेंटीमीटर स्क्वायर इन डिनोमिनेटर, सो इट विल बी -4 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 4. सो इट इज सिंपल. नाउ you can simplify it to get the value of conductivity. Okay, or we can simplify it. This is 125 4. So you can say that sigma is 1/16 into 10 to the power 7 in SI unit.
this is the value of conductivity, and I hope this is the answer of your third part of the question. Now we will explain it once again. We have taken a simple question only to explain Ohm's law. This was a conductor, यह एक कंडक्टर है, इसके अक्रॉस हमने एक 2 वोल्ट की बैटरी लगा दी। बैटरी लगाने के बाद अंदर में करंट फ्लो करता हुआ अपने को पाया गया। इस कंडक्टर के ज्योमेट्री के बारे में दिया गया, इसका एरिया दिया है 10⁻³ सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ भी है 50 सेंटीमीटर की। तो पूछा गया पहला पार्ट के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। हम जानते हैं बैटरी लगाते ही अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है V/L, ये आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, करंट जा रहा है, तो करंट डेंसिटी बता दीजिए I/A। ओम्स लॉ हम लोग इस रूप में लगाने का आदत नहीं है, बराबर हो जाएगा, दिस इज J = σI, और ये कंडक्टिविटी पूछा गया है। तो दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ what is a Ohm's law and how you can apply it. So I will end here. This was the end of your 5th lecture. We will come in next topic. Thank you.